नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आप सभी को मेरी और उदय न्यूज लाइव की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। शनिवार से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। पूरे भारत में ऐसी दो ही जगह हैं जहां पर जब लोगों के घरों में लड़का पैदा होता है तो माता पिता उसे लंगूर बनाकर लेकर आते हैं। अमृतसर के दुर्गाना मंदिर और बटाला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ काली द्वारा। शुक्रवार को बटाला के काली द्वारा मंदिर में लोगों की भीड़ रही और लोग अपने बच्चों को लंगूर बनाकर लेकर आए। लोगों का मानना है कि बटाला के काली द्वारा मंदिर और अमृतसर के दुर्गाना मंदिर में लड़का होने की मन्नत मांगने पर माता रानी लड़का देती है और बाद में लोग अपने बच्चों को लंगूर बनाकर लेकर आते हैं। काली द्वारा मंदिर में अपने बच्चों को लंगूर बनाकर लेके आए लोगों ने बताया कि अपने बुजुर्गों ने मंदिर में आकर मन्नत मांगी थी कि जब उनके बेटे के घर पर बेटा पैदा होगा तो वह उसका लंगूर बनाकर लेकर आएंगे। लोगों ने बताया कि कुछ लोग 1 साल के लंगूर बनाकर लेकर आते हैं और कुछ लोग 3-4 साल तक लंगूर बनाकर लेकर आते हैं। लोगों का मानना है कि बटाला के शक्तिपीठ काली द्वारा मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है माता रानी उसे जरूर पूरा करती है। लोगों ने बताया कि बेटे को लंगूर जब बनाया जाता है तो सुबह शाम उसकी पूजा की जाती है। नंगे पैर रहा जाता है, लहसुन व प्याज नहीं खाया जाता, बेल्ट तक नहीं बांधी जाती और ज़मीन पर सोना पड़ता है। मेरा नाम कशिश है, मैं बटाला तो आई हूँ। मेरा अपने बेटे ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਇਆ 7-8 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੰਦੇ ਲੇਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੂਰੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਸੁੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਨ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਹੋਣੀਆਂ ਪੂਜਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਲੰਗੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਬਾਈ ਲੌਂਕੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਸੂ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਹਾਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਲ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਗੋਟੇ ਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੰਬੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੌਂਗੜ ਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਗੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚੜਾ ਹੈ, ਲੰਗੜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਗੂਰ ਘੱਟ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵਾ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਆ, ਹਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਂਸ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਜ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜ ਵੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਐਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਚਿਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਜ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। महाराजा अग्रसेन की 5144वीं जयंती आज बड़ी धूमधाम के साथ करनाल में मनाई गई। एनडीआरआई के सामने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर लोगों ने फूल चढ़ाए और माला अर्पण की। इस कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता और आम लोग पहुंचे। हवन यज्ञ किया गया, साथ ही आरती के बाद महाराजा अग्रसेन ने समाज के लिए जो कार्य किए उसके बारे में बताया गया। अग्रसेन ने आगरा शहर में शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गंभीर तपस्या की शुरुआत की थी। शिव ने तपस्या से प्रसन्नता की और देवी को प्रसन्न करने की सलाह दी। अग्रसेन ने आगरा शहर में शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गंभीर तपस्या की शुरुआत की। शिव ने तपस्या से प्रसन्नता की और देवी को प्रसन्न करने की सलाह दी। अग्रसेन ने महालक्ष्मी पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया, जो उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने लोगों की समृद्धि के लिए, व्यवसाय की परंपरा के लिए वैश्य समुदाय शुरू करने के लिए अग्रसेन का आग्रह किया। उसने उनसे एक नया राज्य स्थापित करने के लिए कहा और वादा किया कि वह अपने वंश को समृद्धि के साथ आशीर्वाद देंगी। उसने यह भी कहा कि उसके राज्य में धन की कमी नहीं होगी। महिला अध्यक्ष और आज महाराजा अग्रसेन के वंशज अग्रवाल समाज में यहाँ पर आते हुए खड़े होकर अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली से हमें यहाँ पर बुलाया गया और इतना मान सम्मान किया गया। महाराजा अग्रसेन जी एक शांति के दूत थे, अहिंसा के पुजारी थे। आज इनकी पद चिन्हों पर चलकर हम जितना भी समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हमारी पाठशाला, हमारी स्कूल्स बनाए गए हैं, हमारी धर्मशालाएं हैं, बाबरीज बनाई गई हैं, इसी उस पर आगे चलते हुए हम जितना भी समाज के लिए कार्य कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं और इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। समाज हमेशा से ही अग्रणी रहा है।
किसी भी तरह के सेवा भाव में, समाज को नई दिशा देने में, मार्गदर्शन देने में और किसी भी तरह का दायित्व उठाने में बहुत बहुत साधुवाद मेरा यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के सभी संयोजकों को, जो उन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत जरूरी है आज के समाज में कि हम आगे बढ़कर जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है अंत्योदय, उसको अग्रसेन समाज ने हमेशा से जिया है, हमेशा से चरितार्थ करा है और बहुत गौरवान्वित हूँ आज यहाँ पर आकर। बहुत बहुत साधुवाद मेरा सभी आयोजकों को। के लिए 1 रुपये और 1 ईंट की प्रथा चलाकर समाज को स्थापित किया। अतुल गुप्ता जी केरल मंचर से एक सेवा का मंच पर आए। और मुझे इस बात का विशेष गौरव महसूस होता है कि हम महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, जिन्होंने समाज को एक दिशा दी और बंधु मिलकर समाज में कोई भी सेवा है, कहीं भी कोई भी अपना कार्य है, वो बड़े खुशी से करता है। मेरी प्रार्थना है हमारे पंकज गर्ग जी की सच्ची बेटे जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है, कृपया मंच पर आए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सभी समाज के बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं समाज नवरात्रि के शुभ दिन में मां दुर्गा पूजा के लिए अलग अलग जगहों पर मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। वहीं पहले नवरात्रि को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मां दुर्गा की अलग अलग रूप की पूजा कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु पटियाला के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पटियाला के प्रसिद्ध काली माता मंदिर के बाहर सरदारों की लंबी लाइनें और भीड़ दिखाई दी। वहीं प्रशासन और काली माता प्रशासन की तरफ से नवरात्रि के शुभ दहाड़े को देखते हुए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कोरोना महामारी का पालन करते हुए श्रद्धालु और मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं और श्रद्धालु सोशल डिस्टेंस, मास्क का ख्याल रखते हुए माता के दर्शन कर रहे हैं। पहला नवरात्रा है शैलपुत्री माता का। महामारी का आशीर्वाद सारे उत्ते बनया हुआ जी। जिवें कि कोरोना का इन्ना इफेक्ट सीगा, हुण भीड़ देख के लग रहा कि एक तरह लोगों में हौसला आ गया। पहला कोरोना के करके बहुत लोग घट आ रहे थे, हुण बहुत मात्रा लोग आने लग गए। जिवें तुसीं देखा ना कि बाहर रौनकां लगियां हुई। हमेशा की तरह पिछला नवरात्रा का चलो जिंदगी पहली बार असीं देखा कि कदे कुछ ऐसा होया हो कि पिछले नवरात्रे नहीं लगे मार्च वाले, पर इस बार बहुत शानदार लग रहे हैं जी। सारी तैयारियां साडियां पूरियां हैं, पुलिस वालों सारी प्रोटेक्शन है और सफाई सेवादार सारे अपने अपने ड्यूटी पर पूरी तरह तैनात नहीं है। ये बहुत अच्छे तक ढंग सारा कुछ चल रहा है। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा मात्रा आ रही है। नवरात्रे पूरे की घटे बदे नहीं पूरे महामारी पूरे मंदिर की मानता केड़ा मंदिर है? ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਨਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ? ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਸਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜहाँ शराब, मुर्गा, बकरा हर तरह का ਜਿਹੜਾ ਹੈ तांत्रिक मंदिर है। हर तरह की चीज़ है महामारी स्वीकार करती है। जब नवरात्रे शुरू होगी किमें इंतजाम? नवरात्रे में देखते हो इस बार थोड़ा सानू थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पै रही है क्योंकि कोविड-19 देखते हुए कोरोना महामारी में देखते हुए असी जोड़ा है बहुत ही विशेष व्यवस्था सानू करनी पई है। लोगों को जो है सैनिटाइज की व्यवस्था सामने मेन गेट के ऊपर करी हुई है, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था करी हुई है और उस तो बाद ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤਜਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮੰਦਰ 'ਚ? ਸਾਡੇ 200-250 ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੋਲ ਖਾਨੇ ਪਏ ਵੇ ਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੋ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਨਵਰਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਵੀਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ? ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਨਰਾਤੇ ਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿਨ ਆ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਪਈ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਮੰਦਿਰ 'ਚ? ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। VIP ਗੇਟ ਉੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मंदिरों में फिर से रौनक लौट आई और सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में आना शुरू हो गए। ऐसे में कोरोना महामारी के दौर में कोरोना के बचाव के लिए मंदिरों में कोविड-19 से बचाव के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। 9 दिन चलने वाले नवरात्रों की शुरुआत आज से हो गई है। इसको लेकर अंबाला के मंदिरों में लोग सुबह सुबह ही देवी मां के दर्शन करने अपने परिवार के साथ पहुंचना शुरू हो गए। मंदिरों में कोरोना की वजह से भक्तों ने जो दूरी बना ली थी वो अब खत्म हो गई है और आज से मंदिरों में फिर से रौनक लौट आई। वही कोरोना महामारी का खतरा निरंतर बरकरार है। ऐसे में कोविड-19 से बचाव को लेकर मंदिरों में पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। राकेश कुमार बद्दा है। पहली बार आज माता रानी के पहले नवरात्रि पे यहाँ पे आया हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा आके। और रौनक तो माता रानी के मंदिर में हमेशा है ही है। यहाँ तो लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, सब आप देख ही रहे हैं, सबने मास्क भी लगाए हुए हैं और ये बहुत अच्छा उदाहरण है कोरोना से बचाव का भी। तो माता रानी के दर्शन करो, आशीर्वाद प्राप्त करो, कोरोना से मुक्त रहो। धन्यवाद। और हम मंदिर में आए मत्था टेकने के लिए। हम हर परिवारों के लिए, हर के लिए दुआ करते हैं, अच्छी कामनाएं हो गए और सबकी शुभकामनाएं। तो वो जय माता की। आज जो है सभी ऐसे जैसे हर सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तय गए हैं, उसी हिसाब से हम जो लोग चल रहे हैं। सबसे पहले तो जो जहाँ पे हमारी प्रवेश होता है भक्तजनों का, वहाँ पे मास्क की व्यवस्था है। जो भी लोग जो है मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनको निःशुल्क मास्क जो दिए जा रहे हैं और हाथ जो है सैनिटाइज करके जो है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग से जो है माथा टिकवाया जा रहा है और पैकिंग वाला ही प्रसाद दिया जा रहा है। जिस प्रकार से सरकार ने आदेश दिया है कि पैकिंग वाला प्रसाद दिया जाए, उसी तरह से पैकिंग के प्रसाद के दिया जा रहा है। हमारी तरफ से वितरण किया जा रहा है। खुला प्रसाद और भंडारे की व्यवस्था इस बार नहीं किया गई है और ना ही जो है किसी तरह का सत्संग है इस बार जो माता रानी का होता है। तो सभी जो है भक्तों को भी यही हिदायत दी गई है कि दूर दूर रहें और मास्क लगा के रहें और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही माथा टेकें। जहां पंजाब में शराब नशे के खात्मे के चलते माफिया के ऊपर में नकेल डालने के लिए पंजाब की पुलिस की तरफ से दिन प्रतिदिन छापेमारी की जा रही है। उसी कड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगने पर त्रिपुरी पुलिस को मिली सफलता। 2 व्यक्तियों को 26 नशीली गोलियों समेत किया गिरफ्तार। वहीं मीडिया से बात करते हुए हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने क्या कहा, ये आप सुनिए ध्यान से। नशीली गोलियां लेकर पटियाला की ओर आ रहे जब नाका लगाया गया तो नाके के दौरान 2600 नशीली गोलियां बरामद की। पटियाला पुलिस ने और 2 लोगों को किया गिरफ्तार। विमान जोग अदालत में दोषियों को पेश कर इसका रिमांड लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे यह कहां से ला रहे थे, इसको यहां सप्लाई देनी थी। कल साडी पुलिस पार्टी अपना ASI लखवीर सिंह ते SI अमर सिंह ने दौराने गश्त इन्होंने 2 दोषी काबू किए हैं। जतिंदर कुमार पुत्र दरबारी लाल, लखविंदर सिंह उर्फ लखा जो कि बिशनगर ते रामनगर का रहने वाला, जिन्हों तो दौराने तलाशी उत्थे 700 नीले ते 1900 नाभी रंग के टोटल 2600 कैप्सूल इन्हों तो नशीले कैप्सूल बरामद होया, जिस के तहत असी मुकदमा दर्ज करके थाना त्रिपड़ी विखे इन्हों की अगे तफ्तीश कर। सर ये की आदि सी या बेचते सी लिया के ये इन्हों का अज दोषियों का पुलिस रिमांड हासिल करके इन्हों तो ढंगाई नाल पुछगिछ की जाऊगी
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਢੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।